Hi all. Today we are starting with new chapter number 3 that is macros and macroprocessor. तो ये सब चीजें हमने देखी थी इंट्रोडक्शन में कि सिस्टम कंपाइलेशन में क्या-क्या चीजें इंक्लूडेड होती है. तो लास्ट लेक्चर हमने देखा था व्हाट इज असेंबलर. In this chapter we will see what are macros. Now, a macro process helps us to define and use macros in an assembly language. During macro definition, a group of statement is provided that we want to associate a macro name. The assembler replaces the macro name with the statements specified in the macro definition. यानी macros are nothing but some executable statements. तो हम उसे एक लेबल देते हैं, एक नाम देते हैं और उस नाम के अंदर हम सब इंस्ट्रक्शंस डिफाइन करके रखते हैं. सो दैट जब भी प्रोग्राम लिखना होता है, लेट्स से अगर वो बहुत लंबे एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स हैं, तो इन अ गिवन प्रोग्राम वी विल जस्ट यूज द मैक्रो नेम, द लेबल जो हमने दिया है, उसका टाइटल जो हमने दिया है. प्रोग्राम में हम वो सिर्फ टाइटल यूज करेंगे जिसे हम मैक्रो नेम बोलते हैं. So in a given program, we will just simply write that macro name while executing. जब compiler will execute that macro name, will it will encounter that macro name. तो वो compiler memory में जाके check करेगा और वो macro name के जगह पे उसके अंदर जितने हमने इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, एग्जीक्यूशन के टाइम पे वो उस मैक्रो नेम को इंस्ट्रक्शन से रिप्लेस कर देगा. See, the assembler replaces the macro name with the statements specified in the macro definition. So, assembler का काम क्या होता है? जैसे ही कंपाइलर ने वो एग्जीक्यूट किया है, assembler का काम होता है कि वो मैक्रो नेम के जगह पे वो सारा इंस्ट्रक्शंस रिप्लेस कर दो उसको जिसके अंदर वो लिखे गए हैं. Macros provide several advantages when writing assembly programs. The frequent use of macros can reduce the programmer induced error. जैसे मैंने बोला था कि अगर errors है, अगर पता करना होगा तो macros में ही है या और original program में है, दूसरे part of the program में है. So it helps understanding the error part very easily. A macro allows us to define an instruction sequence that are used repetitively throughout the program. This reduces the likelihood of errors introduced in the repetitive program sequences. Now, as I said, starting में मैंने बताया था कि जो macro है, मैक्रोज आर दो स्टेटमेंट्स जो हम रेपिटेटिवली चाहते हैं कि वो यूज हो या रेपिटेटिवली एग्जीक्यूशन हो, बार बार हमें एग्जीक्यूट करना पड़े, ऐसे इंस्ट्रक्शंस हम मैक्रोज में लिखते हैं. सो दैट इन अ गिवन प्रोग्राम इट इज नॉट नेसेसरी टू राइट दोज इंस्ट्रक्शंस अगेन एंड अगेन. तो उससे क्या हो जाता है, लेंथ भी बड़ा हो जाता है, प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है, प्लस अगर कुछ एरर आया तो हमें पूरा प्रोग्राम स्टार्ट टू एंड चेक करना पड़ता है. सो इंस्टेड वी राइट मैक्रोस, जिससे क्या होता है, लाइंस ऑफ कोड रिड्यूस हो जाता है, एरर्स पॉसिबली फाइंड आउट करने के जो चांसेस होते हैं वो भी रिड्यूस हो जाते हैं. प्लस अगर प्रोग्राम में 10 बार हमको सेम इंस्ट्रक्शंस लिखना है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैट 5 10 लाइंस का एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट्स, विल जस्ट राइट वन मैक्रो नेम. तो एग्जीक्यूशन के वक्त वो ऑटोमेटिकली मैक्रो नेम को इंस्ट्रक्शन से रिप्लेस कर देगा. The next advantage is the scope of symbols used in macro is limited. यानी macros में जो जो symbols हम use करते हैं वो बहुत limited होता है. Macros are well suited for creating simple code tables. यानी जो simplest code tables होते हैं, symbol tables होते हैं, उसके लिए बहुत easily use कर सकते हैं. It makes an assembly program more readable. The assembly language programmer often finds it necessary to repeat some blocks of code many times. The block may consist of series of operations like addition, subtraction, etc. again and again. In this situation, the programmer will find macro instruction facility very helpful and useful. जैसे मैंने बोला था कि अगर कुछ part of the program में ऐसा executions है where you have to write some statements again and again repetitively, उसका executions चाहिए या लिखना जरूरी है. In that case, as a programmer, you will find this macro very easy and helpful. Let us see now macro definition call. कि macro को लिखते कैसे है, उसको call कैसे करते हैं. Macro meaning large or wide. A macro is a block of code which has been given a name. Whenever the name is invoked, it is replaced by the interpreter or compiler by the contents of the macros. यानी मैक्रो का मतलब होता है लार्ज या फिर वाइड. मैक्रो इज नथिंग बट अ ब्लॉक ऑफ कोड. मैंने जैसे बोला था कि इसके अंदर हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं और उस इंस्ट्रक्शंस को एक टाइटल देते हैं. वो टाइटल का टेक्निकल टर्म्स हियर वी कॉल एज मैक्रो नेम. जब भी ये नेम इन्वोक होता है तो जो इंटरप्रेटर है, जो असेंबलर है, वो इसको इंस्ट्रक्शन से रिप्लेस कर देता है.
A single line meaning for group of statements is called macro and it is notational convenience for the programmer. क्योंकि प्रोग्रामर को बार बार 10 स्टेटमेंट्स लिखने की याद रखने की जरूरत नहीं है, वो सिंपली एक मैक्रो नेम लिख सकता है जहां जहां पे सेम इंस्ट्रक्शंस लिखने हो या एग्जीक्यूशंस के लिए लाने हो. Macro instructions replaces a macro with a group of statements wherever they are called. This activity of replacing code is called as expansion of macros. यानी जहां पे मैक्रो नेम लिखा जाता है, जैसे हमने देखा कि असेंबलर जो है वो मैक्रो नेम को वो इंस्ट्रक्शन से रिप्लेस कर देता है. सो ये जो phenomena है where you are replacing a macro name with the instructions in it, that concept is called as expansion of macros. In compiled languages, macro expansion happens at compile time. Thus, macro instructions allows the programmers to write a shorthand version of the program. जैसे मैंने बोला था कि प्रोग्रामर के लिए बहुत सिंपल हो जाता है, एक अलग सा ही पार्ट हम मैक्रोस के लिए रख सकते हैं, शॉर्टहैंड वर्जन, यानी जब चाहिए हो जिस प्रोग्राम में चाहिए वैसे हम इंक्लूड कर सकते हैं. And leave the mechanical details to be handled by the microprocessors. So let us see what are the different purposes and features. The purpose of macros is to either automate frequently used sequences or enable a more powerful abstractions. जैसे हमने बोला था कि frequently used अगर instructions कोई है तो उसके लिए helpful होना चाहिए और abstractions provide करना चाहिए. यानी यूजर को पता नहीं चलना चाहिए कि macros कहाँ से है, कौन से फाइल से लिंक्ड है, कैसे आ रहा है, and so on. Macroprocessors are viewed as an extension of the basic assembler algorithm. Macroprocessors are not directly related to architecture of the computer on which it is run. It is used with high-level languages, operating systems, command languages. Macro replaces each instruction with the corresponding group of statements. SIC requires a sequence of instructions to save the contents of all registers. This can be done by writing one macro like save registers. यानी ये सब जो इंस्ट्रक्शंस दिए ये सब बताए गए हैं, so that we'll see in future. Coming on to functions of macros, कि macros के functions कौन कौन से हैं? The macro processor is basically used to identify the macro definition, save the macro definition, identify macro calls, expand the macro calls. मतलब सबसे पहले तो macro कहाँ पे वो identify करो, उसके बाद वो macro definition यानी वो नाम के साथ साथ जो instructions लिखे हुए हैं उसको save करो, उसके बाद प्रोग्राम में वो macro call कहाँ पे किया गया है वो identify करो कि पूरे प्रोग्राम में वो macro का नेम कहाँ पे आया हुआ है और जहां पे वो मैक्रो कॉल्स आया हुआ है उसके जगह पे वो मैक्रो को इंस्ट्रक्शन से रिप्लेस करो. See here it is given a program with macro definition and macro invocation, यानी एक प्रोग्राम है जिसमें मैक्रो को हमने डिफाइन किया है और उसमें हम उसको इन्वोक भी कर रहे हैं. Then it goes to the macro processor. मैक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, चेक करेगा कि कौन सा मैक्रो नेम है, उसके अंडर कौन से इंस्ट्रक्शंस है, तो वो क्या करेगा, वो मैक्रो नेम को उस सीक्वेंस से रिप्लेस करेगा. सो वी हैव एन एक्सपांशन ओवर हियर. सो अ मैक्रो प्रोग्राम विदाउट मैक्रो डेफिनेशन, दैट इज कंडीशनल मैक्रो एक्सपांशन, कि अगर इन्वोक हुआ तो ही वो रिप्लेस होगा. असेंबलर कंपाइलर्स के पास जाता है एंड देन इट इज ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होता है. सो दीज आर दी फंक्शंस ऑफ दी मैक्रोस. दैट इज हाउ मैक्रोस वर्क. ये देखिए यहाँ पे ये फ्लो चार्ट दिया हुआ है. मैक्रो प्रोसेसर फ्रंट एंड फॉर एन असेंबलर. See, read macro definitions into memory. जो भी macro definitions है वो memory में पहले read करो. More source code यानी कोई और source code में use हो रहा है कि नहीं हो रहा है. No, then assembler को pass करो ताकि dot executable files create हो. अगर yes, then get the next line. Next line में क्या है, वापस macro call है. अगर macro call नहीं है तो फिर सीधा आउटपुट के लिए उसको रेडी करो और अगर मैक्रो कॉल है देन उसको एक्सपांशन लाओ यानी उसको रिप्लेस करो विद द इंस्ट्रक्शंस गिवन एंड आफ्टर दैट वापस सोर्स कोड को रीड करो. वापस उसमें नेक्स्ट लाइन में है कि नहीं सोर्स कोड वो चेक करो. नेक्स्ट लाइन है तो वापस चेक करो मैक्रो कॉल है या नहीं. सो दिस इज अ रेपिटेटिव स्टेटमेंट जब तक मैक्रो कॉल्स खत्म नहीं हो जाता तब तक. सो दिस वाज द फ्लो चार्ट फॉर अ मैक्रो प्रोसेसर फ्रंट एंड असेंबलर. ये रहा मैक्रो एक्सपांडर रूटीन कि मैक्रोस एक्सपांड कैसे होता है. सी, फाइंड द अप्रोप्रिएट मैक्रो डेफिनेशन, बिल्ड अ पैरामीटर टेबल टू रिलेट डमी एंड रियल पैरामीटर्स. यानी मैक्रो डेफिनेशन फाइंड करो, उसमें पैरामीटर टेबल्स देखो कि एग्जैक्टली कौन से नाम है, कैसे इंस्ट्रक्शंस है. एलपी इक्वल्स टू फर्स्ट लाइन इन द टेम्पलेट, यानी कितना लाइन है मैक्रो में उसका फर्स्ट लाइन. एग्जामिन द लाइन, चेक करो लाइन क्या लिखा हुआ है. कंडीशनल असेंबली कॉल, कंडीशनल असेंबली कॉल इन द सेंस की करेक्ट बेस्ड ऑन दैट कंडीशन वो कॉल होना चाहिए या नहीं. इफ इट इज अ यस, इवैल्यूएट द बूलियन एक्सप्रेशन.
अगर वो बुलियन एक्सप्रेशन ट्रू है, यानी अगर ये कंडीशनल कॉल करेक्ट है तो उसमें जो ट्रू है तो फिर वो बुलियन एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना है। जो भी बुलियन एक्सप्रेशन है लेस देन, ग्रेटर देन,